Now today's topic is 8 queens problem. Like in the back using backtracking technique you can solve some of the problems. Like first problem we took already in the previous lecture is sum of subset problem. Similarly 8 queens problem or n queens problem can be solved using the backtracking technique. So first of all we'll understand what is 8 queens or n queens problem. Backtracking, as all of you know, it is a general algorithm for finding all or some of the solutions to some computational problem that incrementally builds candidate to the solutions and abandons each partial candidate C that backtracks as soon as it determines that C cannot be possibly be completed due to the valid solutions. Fine. So what I mean by backtracking, it is nothing but the tool or the technique that is used to solve some of the problems that are computational problems, and using this backtracking technique, the set problems, and we can find out the multiple solutions using multiple solutions for n number of the sets. Backtracking is an important tool for solving constraint satisfaction problems such as crosswords, verbal arithmetic, Sudoku problem also we can solve, the maze problems also, and many other puzzles problem you can solve. So it is it is also the basics of so called as logic programming language, and the called as also called as a planner or prologue. Okay. सो बैक ट्रैकिंग टेक्निक को उसने इन्वॉल्व किया है, वो सब है. सो व्हाट इज एट क्वींस प्रॉब्लम, और ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बैक ट्रैकिंग, and today's lecture we are concentrating on the eight queen problem. So what I mean by eight queens problem? Eight queens problem is the problem of placing eight chess queens on an 8 by 8 chessboard so that no two queens can attack each other. ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, अगर पॉसिबली हमारे पास 8 क्वींस है और हमारे पास 8 बाय 8 का चेस बोर्ड है, इमेजिन करना है. ठीक है, तो हमको ये 8 क्वींस ऐसे प्लेस करनी है सो दैट आठों में से कोई भी एक क्वीन एक दूसरे से अटैक नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स 8 क्वींस कैन नॉट अटैक ईच अदर, सच दैट हमको ये क्वींस प्लेस करनी है. Thus, the solution requires that no two queens share the same row, same column and same diagonal. ठीक है, तो हमको हमेशा ये याद रखना है, whether it is 8 queens problem or n queens problem, कितने भी queens का problem हो, whether it is 1 queen problem, 2 queen problem, 3 queen और 8 क्वीन प्रॉब्लम, कितने भी क्वींस का प्रॉब्लम हो, हमको क्या करना है कि सॉल्यूशन हमको ऐसे मिलेगा कि हमारे कंस्टेंट है कुछ. तो पहला कंस्टेंट क्या है हमारा, दे कैन नॉट बी इन द सेम रो. अगर दो क्वीन भी है तो हम वो सेम रो में नहीं होनी चाहिए, सेम कॉलम में नहीं होनी चाहिए और सेम डायगोनल में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स दे मस्ट नॉट बी क्रॉसिंग ईच रो, देन कॉलम एंड देन diagonal. ठीक है, the eight queens is an example of more than general n queens problem. इंस्टेड ऑफ सेइंग एट क्वींस प्रॉब्लम, हम उसको एन क्वींस प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, जिसमें हम इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग एट क्वींस हम कितने क्वींस प्रेस कर रहे हैं, एन क्वींस प्रेस कर रहे हैं ऑन एन बाय एन चेस बोर्ड. मतलब अगर मेरा एट क्वीन का प्रॉब्लम है तो मेरा चेस बोर्ड कितने का रहेगा, 8 बाय 8 का रहेगा. अगर मेरा टू क्वींस प्रॉब्लम है तो चेस बोर्ड 2 बाय 2 का रहेगा. अगर मेरा फोर क्वींस प्रॉब्लम है तो मेरा चेस बोर्ड 4 बाय 4 का रहेगा. वेयर द सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स वेयर n is an exception of 1 2 and 3. ठीक है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स रहेंगे, सिर्फ 1 2 एंड 3 छोड़ के बाकी सारे क्वींस प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन पॉसिबिलिटीज आर डिस्क्वायर्ड ओनली अप टू 23 क्वींस. आपको कितने क्वींस के लिए निकालना है ये हम डिस्कवर कर सकते हैं सॉल्यूशन अप टू विच क्वीन, 23 क्वींस के लिए. मतलब 23 क्वीन का अगर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमारा कितने का ये रहेगा, 23 बाय 23 का हमारा चेस बोर्ड रहेगा. ठीक है, सो हम चेक करते. The puzzle was originally proposed in 1848 by chess player Max Bazel, and over the years, many mathematicians, including Gauss, have worked on this puzzle, and it is generalized as n queen problem.
सबसे पहले किसने इवॉल्व किया ये पजल? 1848 में बाय मैक्स बेजल ने। ठीक है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ठीक है, मतलब कितने सॉल्यूशंस हमारे इसमें निकले हैं? द फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर 8 क्वींस वेर प्रोवाइडेड बाय फ्रांस नॉक इन 1850। ठीक है, उसके बाद 1874 में गिंथर ने निकाला हुआ है। उसके बाद एज डिजास्ट्रा ने 1872 में 1972 में निकाला हुआ है। एंड सेम डिजास्ट्रा ने सम ऑफ द डीएफएस दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम भी निकाले हुए हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मुलेशन? स्टेट्स एनी अरेंजमेंट, मतलब कितने स्टेट्स है अपने? हमारे यहाँ पे 8 स्टेट्स है। कहाँ से शुरू होते हैं? 0 to 8। क्यों क्यों 0 to 8? क्योंकि हमारा चेस बोर्ड कितने का है? 8 by 8 का है। टू सॉल्व द 8 क्वीन प्रॉब्लम, अगर हमारा 4 क्वीन प्रॉब्लम रहता है तो 4 by 4 का हमारा चेस बोर्ड रहेगा। ठीक है, स्टेट्स एनी अरेंजमेंट ऑफ 0 to 8 क्वींस ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट क्या होगी हमारी? सबसे पहले 0 to 8 स्टेट्स है अपने। ठीक है, इनिशियल स्टेट उसमें से 0 क्वीन ऑन द बोर्ड। आपको कौन सी प्लेस करनी है? 0 क्वीन ऑन द बोर्ड। सक्सेसर फंक्शन, सक्सेसर फंक्शन क्या कहता है? ऐड 1 क्वीन इन एनी स्क्वायर। मतलब हमने अगर फर्स्ट रो में एक क्वीन ऐड की है तो सेकंड रो में कोई भी हम क्वीन ऐड कर सकते हैं, थर्ड में, फोर्थ में एंड सो ऑन, such that we have to arrange that no queen is attacking each other। देखो अगर ये हम देख रहे हैं पहली वाली क्वीन, ठीक है, इसका पहला रो जो है, ठीक है, उसमें कोई क्वीन है क्या? 8 में से, रेस्ट ऑफ द 7 क्वींस में से नहीं। इसके कॉलम में कोई क्वीन है क्या? नहीं। इसके डायगोनल में कोई क्वीन है क्या? नहीं। ठीक है, दैट मीन्स इट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेसिंग दिस फर्स्ट क्वीन। अगर हमने सेकेंड क्वीन सेकेंड रो में सोची हुई है तो सेकेंड रो में देखो कोई अदर क्वीन है क्या? नहीं। ठीक है, उसके रो में कोई एक क्वीन है, उसके कॉलम जो है उसका सेकेंड लास्ट उसमें कोई क्वीन है क्या? नहीं है। ठीक है, उसके डायगोनल में देखो जो ब्लैक आ रहा है वहां पे कोई क्वीन है क्या? नहीं है। दैट मीन्स नो वन इज, रेस्ट ऑफ द क्वीन इज नॉट अटैकिंग दिस क्वीन। ठीक है, अब थर्ड रो में अगर हम आते हैं थर्ड क्वीन पे, उसके कॉलम में कोई क्वीन है क्या? नहीं। उसके रो में कोई क्वीन है क्या? नहीं। उसके जो उसका जो डायगोनल है उसमें कोई क्वीन है क्या? नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वीन पे आते हैं, फोर्थ क्वीन पे। फोर्थ क्वीन का जो लास्ट वाला कॉलम है वहां पे कोई क्वीन है क्या? नहीं। उसके कॉलम रो में कोई क्वीन है क्या? नहीं। उसके डायगोनल में कोई क्वीन है क्या? नो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ क्वीन पे। फिफ्थ क्वीन पे देखो जो उसका सेकंड कॉलम है उसमें कोई क्वीन है क्या? नहीं। उसका जो रो है उसमें कोई क्वीन है क्या? नहीं। उसका जो डायगोनल है उसमें कोई क्वीन है क्या? नहीं। ठीक है, अब हम सिक्स क्वीन पे आते हैं। सिक्स क्वीन पे देख लो, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी क्रॉस वेरीफाई किया है कि उसके डायगोनल में कोई क्वीन है नहीं है, उसके रो में कोई क्वीन नहीं है और उसके कॉलम में भी कोई क्वीन नहीं है। ठीक है, आपको एक ही डायगोनल नहीं चेक करना है, आपको बोथ डायगोनल्स चेक करने हैं। देखो ये जैसे यहाँ पे, यहाँ से एक डायगोनल दिया हुआ है यहाँ तक और एक दूसरा डायगोनल दिया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स के बाद सेवेंथ, उसके रो में कोई क्वीन है क्या? नहीं। उसके कॉलम में है क्या? नहीं। उसके डायगोनल में है क्या? नहीं। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर 8 क्वींस प्रॉब्लम। ठीक है, successor function add one queen in any square. Goal test 8 queens on the board and none is attacking each other, that means this is called as our goal. Goal means हमको ये achieve करना है that no queens is attacking each other. ठीक है, so backtracking concept backtracking concept इसके ऊपर कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक क्वीन टेस्ट करते हुए जाना है। ठीक है, अगर पहली क्वीन का जो सॉल्यूशन है वो परफेक्ट है, ठीक है, तो दूसरी क्वीन प्लेस करो, उसके बाद तीसरी क्वीन प्लेस करो। अगर तीसरी क्वीन, अगर मैंने सेकंड क्वीन यहाँ पे प्लेस की हुई है तो आपको क्या करना है? बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक मतलब फिर से उसको उसका सॉल्यूशन निकालना है सच दैट, अगर देखो मैंने ये पहली सेकंड वाली क्वीन जो है अगर ये मैंने पहले कॉलम में प्लेस कर दी, ठीक है, तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन है क्या? इसके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेम कॉलम में आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये सेम कॉलम में आ रही, इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड रो में उसको शिफ्ट करेंगे। सेकेंड रो में अगर मैंने उसको शिफ्ट किया तो सही है क्या सॉल्यूशन? नहीं। क्यों? क्योंकि
मुझे क्या करना है, ये सेम रो में सेम डायगोनल में आ रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से बैक ट्रैक करूंगी, मतलब उसको फिर से रिप्लेस करूंगी। क्या ये थर्ड इसमें आ सकती है? यस आ सकती है, क्योंकि टिल नाउ कोई भी क्वीन मैंने नेक्स्ट वाली प्लेस नहीं की हुई है। तो क्या ये यहाँ पे आ सकती है? यस आ सकती है, ठीक है। अगर फिर से ये यहाँ पे अगर मैंने प्लेस कर दी तो थर्ड के लिए मुझे सॉल्यूशन फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक स्क्वायर, एक एक चेस का जो स्क्वायर है वो चेक करते हुए मैं क्या करूंगी, उसको रीअरेंज करूंगी। अगर फाइनली एट क्वीन मेरी कहीं पे भी प्लेस नहीं हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट क्वीन से मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट क्वीन से मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द मतलब फर्स्ट रो वाला अगर मेरा फर्स्ट क्वीन वाला अगर मेरा सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, तो मुझे सेकंड कॉलम में उसको शिफ्ट करनी पड़ेगी। सो दिस इज नथिंग बट द बैक ट्रैकिंग टेक्निक। आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर निकालना है। अगर मेरा ट्रायल सही है तो मुझे क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। अगर मेरा ट्रायल गलत है तो मुझे फिर से इनिशियल से फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा। So this is the backtracking technique, and we can solve the 8 queens or any n queens problem using the backtracking technique, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 4 क्वींस प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो 4 क्वींस प्रॉब्लम के लिए कितना चेस बोर्ड है, 4x4 का मेरा चेस बोर्ड है, ठीक है। तो मेरा ये डेमो शुरू है, मतलब मेरा ट्रायल शुरू है, वेदर आई विल बी सक्सेस देयर और नॉट, आई एम नॉट श्योर फॉर दिस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वीन मैंने फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दी है, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड क्वीन के लिए मैं चेक करती हूँ, सेकेंड क्वीन यहाँ पे बैठेगी क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे बैठेगी क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे बैठेगी क्या, यस बैठ सकती है, ठीक है। थर्ड क्वीन क्या यहाँ पे बैठ सकती है, नहीं। क्या यहाँ पे बैठ सकती है, नहीं, क्योंकि वो सेकंड क्वीन के डायगोनल में आ रही है। क्या यहाँ पे बैठ सकती है, नहीं। क्या यहाँ पे बैठ सकती है, नहीं, ठीक है। तो थर्ड क्वीन मेरी यहाँ पे नहीं बैठ सकती, इसीलिए मैं सेकंड क्वीन का क्या कर रही हूँ अभी, चेंज कर रही हूँ, ठीक है। प्लेस मैंने सेकंड क्वीन की चेंज कर दी, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वीन सेकंड क्वीन की वजह से मेरी थर्ड क्वीन देखो कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रही है। देखो सेकंड क्वीन ज्यादा से ज्यादा अपोज में आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेकंड क्वीन को मैंने शिफ्ट कर दिया नीचे। अब मैंने थर्ड क्वीन चेक की, क्या पहले इसमें आ रही है। जैसे मैंने सेकंड क्वीन का ये शिफ्ट कर दिया, तो उसको मुझे क्या करना पड़ा कि थर्ड क्वीन से मुझे सेकंड क्वीन पे आना पड़ा, कॉल्ड एज अ बैक ट्रैकिंग टेक्निक, ठीक है। तो थर्ड क्वीन से मैं कहाँ पे आ गई हूँ, फिर से सेकंड क्वीन पे आ गई हूँ, और सेकंड क्वीन की मैं क्या कर रही हूँ, कंडीशन जो प्लेस है वो चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने थर्ड क्वीन को हाथ लगाया, थर्ड क्वीन पहले इसमें आ रही है क्या, रो में, नहीं, क्योंकि फर्स्ट इसमें वो है, ठीक है। तो थर्ड क्वीन क्या ये रो में आ रही है, यस सेकेंड रो में आ सकती है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी वो अटैक नहीं हो पा रही। अब मैं फोर्थ क्वीन के लिए जाऊंगी, तो फोर्थ क्वीन क्या फोर्थ पहले रो में आ सकती है, नहीं, क्योंकि वो पहले रो किसका है, पहले क्वीन का है, और डायगोनल किसका आ रहा है, थर्ड क्वीन का आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगी, उसको चेंज करूंगी, नीचे लग सकती हूँ क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो डायगोनल में आ रही है। तो मैं थर्ड इसमें रख सकती हूँ क्या, नहीं, क्योंकि वो फिर से डायगोनल में किसके आ रही है, सेकेंड क्वीन के डायगोनल में आ रही। तो क्या मैं लास्ट में रख सकती हूँ क्या, नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वीन का फोर्थ क्वीन का यस थर्ड क्वीन का मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा प्लेस, ठीक है। तो अगर मैंने थर्ड क्वीन का प्लेस चेंज किया तो क्या बैक ट्रैक आ गई मैं फिर से, ठीक है, फोर्थ क्वीन से थर्ड क्वीन पे आ गई, तो फिर क्या मैंने अगर ऊपर से उसको नीचे शिफ्ट किया तो वो सेकेंड क्वीन पे आ रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड क्वीन का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वीन का मैंने चेंज किया, फिर भी ज्यादा मैं और चेंज कर सकती हूँ क्या सेकंड क्वीन के लिए, नहीं, क्यों, क्योंकि आगे चल के फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले वाली जो क्वीन है उसी का मैंने क्या किया है, प्लेस चेंज कर दिया, ठीक है। तो प्लेस चेंज करने के बाद फिर से मैं सेकंड क्वीन के आ गई, ठीक है। तो मुझे मैंने क्या किया, बैक ट्रैक टेक्निक यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो बैक ट्रैक टेक्निक अप्लाई करने के बाद तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अभी फर्स्ट क्वीन पे आ रही हूँ। तो फर्स्ट क्वीन पे आने के बाद फर्स्ट क्वीन का मैंने पोजीशन चेंज किया है, ठीक है।
तो अब मैं सेकंड क्वीन के लिए चेक कर रही हूँ कि मेरी कौन सी पोजीशन फिक्स बैठ रही, तो मेरी लास्ट पोजीशन फिट बैठ रही। वैसे ही मैं नेक्स्ट क्वीन पे चेक कर रही हूँ कि नेक्स्ट क्वीन की मेरी कौन सी पोजीशन फिट बैठ रही है। ठीक है, सो मुझे एक पोजीशन मिल गई है थर्ड क्वीन की और मुझे नेक्स्ट क्वीन की भी एक पोजीशन मिल गई, सो आई एम गेटिंग द फाइनाइट सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, so this is nothing but one of the solution for 4 by 4 queen problem, 4 queen problem for 4 by 4 chessboard. ठीक है, so this is nothing but the this is nothing but the revised condition or steps revised in the backtracking. तो मैंने ये पूरे स्टेप्स जो अभी एक्सप्लेन किए हैं वही टेक्स्ट में पूरे 10 पॉइंट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट स्टेप्स आपको फिर से रीड करना है और एक एक करके आपको एक एक सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, सो दिस इज 8 क्वींस प्रॉब्लम, 8 क्वींस एल्गोरिदम। ठीक है, सो जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे उतने रोज आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरा 8 क्वीन है तो यहाँ पे रो नंबर क्या दूंगी मैं 8 दूंगी, अगर मेरा 4 क्वीन है तो मैं यहाँ पे रो नंबर क्या दूंगी 4 दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कॉलम अवेलेबल और नॉट, रो अवेलेबल और नॉट, रो एंड कॉलम कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल देयर और नॉट, उसके बाद डायगोनल अवेलेबल देयर और नॉट, और उसके बाद मैं क्या करूंगी चेक करूंगी और चेक करने के बाद अगर मुझे सॉल्यूशन मिलता है देन इट इज सक्सेस, अदरवाइज फिर से मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा और बैक ट्रैक करके हर एक क्वीन का मुझे क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा प्लेस। ठीक है, सो दिस इज 8 क्वींस प्रॉब्लम हैज 92 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। 8 क्वींस के कितने सॉल्यूशंस है 92 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस है। इफ सॉल्यूशंस दैट डिफर ओनली by some operations that is rotations and deflections of the chessboard are counted as on the puzzle has 12 unique solutions। ठीक है, ये मेरे 8 क्वींस के सम ऑफ द सॉल्यूशंस है, तो ये आप रीड करो। एग्जाम में क्या आता है, शॉर्ट नोट ऑन 8 क्वींस प्रॉब्लम एज वेल एज शॉर्ट नोट ऑन सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट में आपको पॉसिबिलिटीज कंडीशंस आपको दिखानी है और एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एन, 1 क्वीन के लिए 1 सॉल्यूशन निकलेगा लेस देन 2 टाइम, 2 क्वीन के लिए 2 सॉल्यूशंस निकलेगा, 8 क्वीन के लिए मेरे टोटल सॉल्यूशंस कितने निकल रहे हैं 92 निकल रहे, और यूनिक सॉल्यूशंस कितने मेरे 12 है। टोटल सॉल्यूशंस 92 है और यूनिक सॉल्यूशंस कितने 12 है। वैसे 4 क्वीन के लिए मेरे टोटल सॉल्यूशन 2 है और यूनिक सॉल्यूशन मेरा 1 है। 5 क्वीन के लिए मेरे टोटल सॉल्यूशन 10 है और यूनिक सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, जनरली 1, 2 एंड 3 क्वींस के लिए प्रॉब्लम पूछते नहीं है ऑलरेडी, हमेशा 4 क्वीन और 8 क्वींस के लिए पूछते हैं, मैक्सिमम टाइम 8 क्वींस के लिए प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर टोटल सॉल्यूशंस एंड यूनिक सॉल्यूशंस। 26 सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हुए हैं तो उतने सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, so this is about your 8 queens problem. I hope you understand 8 queens problem. ये आगे पूरा उसका प्रोग्राम दिया हुआ है, वो हमको नहीं है, सिर्फ हमको 8 क्वींस प्रॉब्लम है। थैंक यू।